Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing about dramatic types, that is tragedy and comedy. In the previous lecture, we tried to understand dramatic art, we tried to understand the ingredients of the drama, we tried to understand how the drama is a composite art. In this lecture, we will try to understand what is meant by tragedy and what is meant by comedy and what are the different aspects differentiating both the types. We will also try to understand what is the difference between Greek literature and English literature at the same time. Drama is divided broadly into tragedy and comedy, and comedy is intended to evoke laughter. ड्रामा को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, एक ट्रेजेडी सरसरी तौर पर और एक है कॉमेडी. Tragedy deals with the darker side of the life and comedy with its light side, and it leads to unhappy end. ट्रेजेडी को अगर देखा जाए तो ट्रेजेडी एक डार्कर साइड ऑफ लाइफ को दिखाती है, दुख भरे, दर्द भरे, सफरिंग से भरे, तकलीफों से भरे सफर को बताती है और एक अनहैप्पी एंड की तरफ वो झुकती है. कॉमेडी इसके विपरीत है. कॉमेडी का पर्पस ही है हास्य को जन्म देना और एक हैप्पी एंड की तरफ कॉमेडी जाती है. In Greek drama, tragedy deals with the fate of the characters of high birth. रोमन लिटरेचर में, ग्रीक लिटरेचर में ट्रेजेडी और कॉमेडी को अलग अलग नजर से प्योर कॉमेडी और प्योर ट्रेजेडी को देखा जाता था. ग्रीक ड्रामा की जो ट्रेजेडी है वो कैरेक्टर्स के बारे में कुछ पाबंदियां, कुछ लिमिटेशंस लगाती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है. ग्रीक ट्रेजेडी ये मानती है कि जो कैरेक्टर्स से हीरो है कहानी का, इट शुड बी ऑफ द हाई लीनिएज और ऑफ हाई बर्थ. फॉर एग्जाम्पल किंग्स, प्रिंसेस. And in comedy, people of less importance were involved. कॉमेडी में कम महत्व वाले लोग और ट्रेजेडी में हाई लीनेज के, हाई रैंक के लोगों का समावेश ग्रीक ट्रेजेडी करती है. In ancient Greek, tragic actor put on a thick-soled and high-heeled boot. अब ग्रीक ट्रेजेडी में ट्रैजिक हीरो को अगर पहचानना है तो उसके लिए अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम्स हुआ करते थे. इसमें एक थिक सोल्ड और हाई हील बूट अगर हीरो को पहना दिया जाए, जिसको बस स्किन्स कहते हैं, टू मेक हिम लुक टॉल एंड मैजेस्टिक, ताकि वो हाइट में ऊंचा दिखे और मैजेस्टिक दिखे. एंड कॉमिक हीरो वोर लाइट शूज कॉल्ड शॉक टू शो हिज लो डिग्री. तो जूतों के आधार पर, उसके पहराव के आधार पर ग्रीक ट्रेजेडी में कॉमेडी हीरो और ट्रेजेडी के हीरो के डिफरेंशिएट किए जाते थे. Dramatists in those days believed lives of famous and powerful are suitable for the tragedy. One more important point was observed in Greek tragedy, that dramatists in those days believed that the lives of famous and powerful people were the suitable topics for the tragedy. But as the tragedies developed in the forthcoming years, tragedies dealt with the low life and comedies of high society as well. Tests of the D.R.B. Willis by Thomas Hardy is the best example. It has dairy made for its heroine and there is no hero. So the norms laid down by the Greek tragedies were
remolded, were changed according to the convenience by the English writers. Sir Toby Belch is a character in William Shakespeare's Twelfth Night, Sir John Falstaff in the Henry IV, Portia in The Merchant of Venice, and Rosalind in As You Like It. If you look at these characters, you will find that these all characters are of high rank and they are the part of English comedies. It means that there is a deviation from the Greek rules, and playwrights of England dared to adhere such kind of new norms, and they paved a new way for the English playwrights. अंग्रेजी साहित्यकारों के लिए ब्रिटेन के नाटककारों ने इस प्रकार का एक रास्ता खोल दिया था कि ग्रीक साहित्य से वो अपनी भूमिका को अलग कर सके। ज़रूरी नहीं था कि हीरो कोई हाई लीनिएज का, हाई बर्थ का या हाई रैंक का ही व्यक्ति हो, और ज़रूरी नहीं कि लो रैंक के व्यक्ति ही कॉमेडी में हो। इसको उल्टा करने का प्रयास भी ब्रिटिश लिटरेचर में किया गया। The 18th century witnessed the new time. 18वीं शताब्दी ने एक नए दौर को देखा, द डोमेस्टिक ट्रेजेडी, और रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं, बदलती हुई सभ्यताएं और बदलते हुए समाज के दर्पण को दिखाने का काम 18th century ट्रेजेडी और कॉमेडी ने किया है। द लंडन मर्चेंट बाय जॉर्ज लिलो is the finest example of the modern drama or modern domestic tragedy. Plays of this type were written in prose and not in verse. This is the important part. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि ये ड्रामास पोएट्री में लिखे जाते थे या प्रोज में लिखे जाते थे। 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में पोएट्री में लिखे जाने वाले ड्रामा के परसेंटेज नहीं के बराबर है। ये प्रतिशत घटता गया, और 18th 19th सेंचुरी में प्ले राइट्स ने इस बात को जान लिया था कि अभी नेचुरल इम्प्रेशंस का जो लैंग्वेज है ड्रामा के लिए वो प्रोज है, पोएट्री नहीं। इसलिए पोएट्री और प्रोज ये दोनों चीज़ें जो 16th सेंचुरी में या उसके पहले डोमिनेंट हुआ करती थी, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में प्रोज बिकम द लैंग्वेज, prose became the medium of the drama, and poetry became less important. In Shakespearean dramas, we can see that there is a combination of both. Prose writing और poetry writing, दोनों प्रकार की writing शेक्सपियरियन ड्रामास में, क्रिस्टोफर मार्लोस के ड्रामास में हमें दिखाई देती है। ट्रैजिक एंड कॉमिक एटमॉस्फेयर किस प्रकार से होते थे, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। Tragedy carries serious and comedy mirthful and light atmosphere. जैसे कि पर्पस और इंटेंशन कॉमेडी और ट्रेजेडी का होता है। As per Aristotle, the purpose of tragedy is to purge the emotions through pity and terror. एरिस्टोटल का एरियोपैजिटिका इस बारे में एक गाइडलाइन ऑडियंस के सामने रखता है, रीडर्स के सामने रखता है। एरिस्टोटल मानते हैं कि ट्रेजेडी का मुख्य पर्पस ही टू पर्ज द इमोशंस, भावनाओं को प्यूरिफाई करना है थ्रू द पिटी एंड टेरर। भावनाओं को प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना, यही ट्रेजेडी का पर्पस एरिस्टोटल मानते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज बिगिन हैप्पीली एंड एंड अनहैप्पीली। अब कहानी का अंत क्लाइमेक्स के बाद किस तरफ कहानी झुकती है, इसी के आधार पर हम ट्रेजेडी या कॉमेडी के फैसले पर पहुंचते हैं। पर शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के बारे में ऐसा देखा गया है कि उनकी कहानियां हैप्पीनेस से शुरू तो होती है, पर एंड उनका अनहैप्पीली होता है। एंड कॉमेडीज बिगिंस विथ हैप्पीनेस, अनहैप्पी एक्शंस, अनहैप्पी कॉम्प्लिकेशंस एंड एंड्स हैप्पीली, और कहानियां सुखांत में खत्म होती है। बट बोथ टाइप्स प्रोवाइड प्लेजर टू द ऑडियंस। पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि ड्रामा का पर्पस जो है टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द ऑडियंस, उसी हाई लेवल के प्लेजर को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। अब
आप ये सोचते होंगे कि ट्रेजेडी किस प्रकार का एंटरटेनमेंट या प्लेजर ऑडियंस को देती है। एंटरटेनमेंट of lofty nature is provided by the tragedies. The sensation created by the tragedies on the stage provides a different kind of a pleasure to the audience, and therefore the purpose of both the types is to provide some kind of a pleasure to the audience. Milton says, nothing is there here for tears, and nothing to wail or knock the breast. And this underlines the very purpose of the drama at the hands of Milton. The Greeks believed that tragedy was for catharsis or purgation of the emotions. And purgations means to purify the feelings. And the intention of the comedy was to correct the manners, to refine conduct, and to show common errors of the life. Samson Agonists by John Milton is the finest example of this type. The character conveys the moral of the drama. Now, the purpose at the end of the drama, when the solution or catharsis is going on, the characters reveals the purpose of the drama, and the moral of the drama is conveyed through the characters. Character के माध्यम से उस कहानी के मोटिव को, उस कहानी के पर्पस को और लाइफ की तरफ देखे जाने वाले आउटलुक को, विजन को एक्सप्लेन किया जाता है. द मोरल इज समटाइम्स कन्वेड एट द एंड ऑफ द प्ले. तकरीबन कहानी के अंत में इस प्रकार की मोरल को एक्सप्रेस किया जाता है. इन ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द ड्रामा द रॉन्ग डज नॉट ट्रायम्फ. एक बात तो खासियत है, वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, प्ले राइट्स ने, ड्रामेटिक्स ने और नाटककारों ने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी भी कहानी में कभी भी बुराई का विजय नहीं होता. Wrong does not triumph. The right is troubled for some times, but wrongdoers are punished. कुछ देर के लिए अच्छाइयाँ तकलीफ में पड़ जाती है, उन्हें तकलीफ होती है. They pass through the sufferings, but the wrongdoers are punished in the drama at the end. Sometimes wrongdoers realize his mistakes and reconcile, as Montague and Capulets in Romeo and Juliet. पर कुछ बार कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, कुछ ड्रामाज ऐसे हैं जहाँ पर विलेनियस कैरेक्टर्स को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है और वो फिर अच्छाई की तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं. रोमियो एंड जूलियट के मॉन्टेग्स और कैपुलेट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं. वर्स इज यूज इन बोथ फॉर्म्स. अब पोएट्री कॉमेडी में भी यूज की जाती थी और ट्रेजेडी में भी यूज की जाती थी. ट्रेजेडी एंड कॉमेडी बोथ वेयर द एरियाज वेयर पोएट्री वाज यूज्ड. शेक्सपियर wrote plays in blank verse, and of course there are prose passages in both forms. शेक्सपियर ने भी पोएट्री और प्रोज दोनों का प्रयोग अपने अपने ड्रामा में किया है. And poetry is more impressive, more powerful in the dramas of William Shakespeare. पर शेक्सपियर कहाँ पर पोएट्री का प्रयोग करते थे और कहाँ वो प्रोज को इस्तेमाल करते थे, ये चीज भी देखने लायक है. शेक्सपियर uses prose dialogues usually used by clown, rustic, or a madman speaking just as as you like it. एक जनरली एक डिफरेंस शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज और कॉमेडीज के बारे में देखा जाता है कि अगर प्रोज का इस्तेमाल करना है तो जनरली शेक्सपियर क्लाउन के कैरेक्टर, रस्टिक कैरेक्टर्स या मैडमैन वगैरह या ड्रंकर्ड वगैरह इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स से, लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से, उनके लिए वो प्रोज को रिजर्व करते हैं. और जो हाई लीनिएज के हीरोइक कैरेक्टर्स से उनके लिए पोएट्री का प्रयोग करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेक्सपियरियन ड्रामास के बारे में देखा जा सकता है. बट पोएट्री वॉज नॉट नेचुरल लैंग्वेज फॉर द ड्रामा. But 18th century spectators, dramatists, playwrights realized that poetry is not a natural language of the drama because people do not speak in poetry in day-to-day life. लोग हर रोज की जिंदगी में पोएट्री में बात नहीं करते. इसलिए बहुत सारे ड्रामेटिस्ट्स ये मानते थे कि पोएट्री
ड्रामा की नैसर्गिक भाषा नहीं है। And therefore, tragedy and comedy later descended to prose. और इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में ट्रेजेडी और कॉमेडी में प्रोज का इस्तेमाल किया गया, पोएट्री का इस्तेमाल कम हुआ। The last blank verse tragedies were published by Stephen Phillips. और 19वीं शताब्दी में जो आखिरी ट्रेजेडीज पोएट्री के साथ पब्लिश की गई वो स्टीफन फिलिप्स की थी। एंड हैसन was published by James Ellery Flicker in 1922. It was richly a poetic drama and perhaps the last one of this century. Justice by John Galsworthy is an example of the modern prose art form. John Galsworthy के जस्टिस इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से प्रोज आर्ट फॉर्म को नए सेंचुरी में प्रयोग किया गया। Let us talk about the types of tragedies. ट्रेजेडी के टाइप्स किस आधार पर किए जाते थे और कॉमेडीज को कैसे डिवाइड किया जाता था, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम डिस्कस करते हैं। ट्रेजेडी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्म। ट्रेजेडी को ग्रीक नॉर्म के हिसाब से उसके स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया जाता है, या कभी कभी उसका मैटर और थीम मायने रखता है। ट्रेजेडी as per Greek convention has classical and romantic forms. अगर ट्रेजेडी के वैरायटी को देखा जाए तो according to Greek norms it is divided into two parts, classical and romantic. अब classical और romantic forms क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। In classical tragedies, 3 unities are observed. ये एक important बात है। क्लासिकल ट्रेजेडीज में 3 यूनिटीज को, जो टाइम ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ प्लेस को दर्शाता है, इन तीनों यूनिटीज को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता था। एंड द डिवाइस ऑफ द कोरस एज सजेस्टेड बाय एरिस्टोटल, एंड वन important part was there, chorus was used. We will try to understand the term chorus also. But one more important thing is that original pure tragedies were not allowed subplots. ओरिजिनल ट्रेजेडीज में सब प्लॉट को अलाउ नहीं किया जाता था ग्रीक लिटरेचर में। एक मुख्य कहानी के चलते और कोई कहानी ड्रामा के अंदर नहीं होनी चाहिए, इस बात को ओरिजिनल ग्रीक ट्रेजेडीज मानती है, पर कोरस उसका एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था। द कोरस वॉज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। द बॉडी ऑफ एक्टर्स यूज्ड टू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड ऑफ द स्टेज एंड मेड मॉरल कमेंट्स फॉर डीपर इफेक्ट। कोरस कलाकारों का एक समूह होता था जो स्टेज के बाहर कहानी में क्या होता है इस बात को स्टेज पर रिपोर्ट करते थे और अपने मैसेज को या प्ले राइट्स के मैसेज को कन्वे करने का प्रयास करते थे और ड्रामा के डीपनेस को, सीरियसनेस को और इम्पोर्टेंस को और बढ़ाते थे। इसलिए कोरस ओरिजिनल ट्रेजेडी का, प्योर ट्रेजेडी का अहम हिस्सा थे। Chorus was sometimes an integral part of the plot. उस कहानी का वो एक अविभाज्य अंग हुआ करते थे। The romantic tragedy does not follow the 3 unities, and the chorus also was not an integral part. This is the important difference between classical and romantic tragedies. Romantic tragedy और classical में ये एक थोड़ा सा फर्क है। Romantic tragedy में 3 unities को उतने strictly, जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन हुआ करता था, इसको उतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि इसमें कोरस इंटीग्रल पार्ट नहीं हुआ करते थे। इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ ट्रैजिक एंड कॉमिक सीन्स, बोथ इंट्रोड्यूसिंग सब प्लॉट्स। क्लासिकल ट्रेजेडी से यहाँ डेविएशन दिखाई देता है कि सब प्लॉट्स भी अलाउ किए जाते थे रोमांटिक ट्रेजेडीज में। एक कहानी और उसके अंदर और कई कहानियां छोटी छोटी, इस प्रकार से रोमांटिक ट्रेजेडीज बनती थी। एंड देयर वाज नो साइड पैटर्न ऑब्जर्व्ड और फॉलोड इन क्लासिकल ट्रेजेडीज, इन रोमांटिक ट्रेजेडीज। ट्रेजेडी इज पॉपुलराइज्ड इन इंग्लैंड बाय शेक्सपियर एंड मार्लो। इंग्लैंड में ट्रेजेडीज को पॉपुलर करने का, फेमस करने का श्रेय विलियम शेक्सपियर को और क्रिस्टोफर मार्लो को जाता है। 16th सेंचुरी के सबसे महान नाटककारों में
विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो को समझा जाता है। Horror tragedy of Webster. Now let us try to understand the different varieties observed in English literature. Horror tragedy of Webster's unfold, the heroic tragedy of Dryden and Otway, she tragedy of Rowe, where the central character was a woman or female character, and domestic tragedy of the 18th century. These are some of the varieties of the tragedy. Let us talk about the types of comedy also. Comedy may be classical or romantic. जैसे ट्रेजेडी को क्लासिकल और रोमांटिक में डिवाइड किया जाता है, वैसे कॉमेडीज भी रोमांटिक और क्लासिकल में डिवाइड होती है। क्लासिकल कॉमेडी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय बेन जॉनसन एंड रेस्टोरेशन प्लेराइट्स। और इस प्रकार के क्लासिकल कॉमेडी को पॉपुलर करने का श्रेय बेन जॉनसन को जाता है, और जो रेस्टोरेशन समय के प्लेराइट्स से उन्होंने भी क्लासिकल कॉमेडी को पॉपुलराइज किया। एंड द रोमांटिक कॉमेडी वाज पॉपुलराइज्ड बाय शेक्सपियर एंड यूनिवर्सिटी विट्स इंक्लूडिंग जॉन लिली, ग्रीन एंड थॉमस नैश। These are different varieties of the comedies. The humor comedy of Ben Jonson, the restoration comedy of intrigue, the comedy of manners, the gentle comedy of Colley, Cibber, and the sentimental comedy of the 18th century. These are different varieties observed in respect of the comedies. Cast by Robertson is the finest example. T.W. Robertson's rose cast in 1860, and this is considered to be one of the finest example of the comedy in 19th century, where the natural speech was used as an impressive form of the prose dialogue. I hope that this discussion will help you to understand what is meant by tragedy, what is meant by comedy. This discussion will also help you to understand the difference between English tragedies, English comedies, and Greek literature comedies and tragedies. How the classical and romantic tragedies and comedies differ from each other, and types of tragedies and comedies we have discussed. Thank you very much for observing this lecture.